غریب لکڑہارا اور اس کی ظالم بیوی اور 2 بچوں کا درد بھرا واقعہ۔ یہ واقعہ سن کر کے ہر ایک کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو ایک لائک کرنا تاکہ یوٹیوب اس واقعے کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا تھا۔ جس دن اسے خشک لکڑیاں مل جاتی تو وہ انہیں بیچتا اور کچھ خرد و نوش خرید لیتا، لیکن بڑی مشکلوں سے اس کے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ لکڑہارے کی بیوی اپنی غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی اور آئے دن ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ جس دن لکڑہارے کو جنگل سے خشک لکڑیاں نہ ملتی تو اسے اور اس کے بچوں اور اس کی بیوی سمیت بھوکے پیٹ سونا پڑتا۔ پورا گھر بھوکے پیٹ سوتا اور بیوی اوپر سے اپنے شوہر کے اوپر ظلم کرتی، اپنے شوہر کو مارتی، اپنے شوہر کو ڈانٹتی، اپنے شوہر کو طرح طرح سے پریشان کرتی اور بولتی کہ میرے باپ نے نہ جانے کیا دے کر کے اس گھر میں شادی کر دیا، جب سے میں آئی ہوں تو میں نے ابھی تلک کر کے پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا ماحول ان کے گھر کا تھا۔ جب لکڑیاں ملتی تو کھانے کے لیے سامان ہوتا، لکڑیاں نہ ملتی تو پورا گھر بھوکے سو جاتا۔ ایک دن جنگل کی طرف وہ لکڑہارا جا رہا تھا۔ ایک دن جنگل کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں اس گھر میں چلا گیا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، ہر چیز نمایاں اور صاف و شفاف دیکھ رکھی تھی۔ اس نے اتنا صاف ستھرا گھر اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے گھر میں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ لکڑہارا سوچنے لگا کہ اگر گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے تو یہ گھر اتنا صاف ستھرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صاف ستھرا کیوں ہے؟ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ خیر وہ ایک لمبی سانس بھر کے میز پر جا کے بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اگر آج بھی گھر جاتے ہوئے کچھ لے کر نہ گیا تو بہت جھگڑا ہوگا۔ اسی دوران کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں گمسم سامنے کی دیوار کو بے خیالی میں گھورتا رہا اور اندر ہی اندر اپنی حالت زار پر روتا رہا۔ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز آئی اور اس نے تب محسوس کیا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا اور کپ کپی تاری ہونے لگی۔ لکڑہارے نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک پر اسرار شکل دیکھی اور دیکھتے ہی وہ لکڑہارا چلا اٹھا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسی عجیب و غریب شکل جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ سامنے موجود تھی۔ وہ نہ تو وہ انسان لگتا تھا نہ تو وہ گدھا لگتا تھا۔ اس کا اوپر والا دھڑ گدھے کا اور اس کے نیچے کا دھڑ آدمی جیسا تھا، لیکن وہ انسانی آواز میں بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، نہ میں تمہیں ماروں گا، نہ میں تمہیں کھاؤں گا، نہ تمہیں میں پریشان کروں گا، بلکہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم سے پہلے بھی یہاں لوگ آتے رہے اور مجھے دیکھتے ہی بھاگتے رہے، لیکن تمہیں تو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور ورنہ دوسروں کی طرح تم بھی بھاگ کھڑے ہوتے۔ اب اس نے لکڑہارے سے دریافت کیا کہ وہ کس پریشانی میں ہے اور وہ اتنا گمسم بے سدھر ہو کر کے کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ لکڑہارے نے اپنی دبدبی آواز میں اپنے غم کو بیان کرتے ہوئے اپنی غریبی کا پردہ چاک کر دیا۔ اپنے جملہ حالات کے بارے میں اس مجسمے سے بتا دیا کہ میرے گھر میں ایسا حالات ہے، ایسے ماحول ہیں۔ وہ پر اسرار مجسم جب سب کچھ سنتا ہے، سننے کے بعد بولا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہاری غربت کے خاتمے کو یقینی بدل سکتا ہوں۔ تمہارے پاس میں بھی مکان ہوگا،
तुम्हारे पास में भी घर होगा, तुम्हारे पास में भी पैसे होंगे, तुम्हारे पास में भी ऐशो इशरत की ज़िंदगी होगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम राज को राज रखोगे, राज को राज रखोगे, किसी से जाहिर नहीं करोगे, किसी से इस राज को नहीं बताओगे। तब लकड़हारा सुनते ही चौंक गया और एकाएक उठकर खड़ा हो गया और बोल उठा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, इस राज को मैं राज ही रखूँगा, किसी से मैं इस राज को नहीं बताऊँगा। ये सुनकर उस पुरअसरार मुजस्समे ने कहा, मैं तुम्हें एक दरख्त के बारे में बताता हूँ जिसके पत्तों में इंसानों के लिए इलाज व शिफा है। तुम उसके पत्तों से लोगों का इलाज करना और जायज़ मुनाफा कमाते रहना, लोगों को शिफा मिलती रहेगी और तुम्हारी गुर्बत का खात्मा भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मुझसे ये अहद करना होगा कि तुम इलाज का बहुत कम मुआवजा लिया करोगे और गरीबों और बेसहारा लोगों को तुम मुफ्त इलाज करोगे। लकड़हारे ने इस बात का भी अहद कर लिया। लकड़हारे के अहद व पैमा के बाद उस पुरअसरार मुजस्समे ने उस दरख्त की शनाख्त करवाई और फ़ौरन वो मुजस्समा गायब हो गया। लकड़हारा कुछ गैर यकीनी और तज़बज़ब की कैफियत में उस दरख्त के पत्ते इकट्ठे करने लगा और उसके साथ बताई हुई दीगर जड़ी बूटियाँ भी जमा करके घर की तरफ पलटा। जब वो घर पहुँचा तो आज फिर उसके पास खाने पीने की अशिया नहीं थी, जिसे देखते ही उसकी खड़ूस बीवी उस पर बसना शुरू हो गई और हस्बे मामूल कोसा देने लगी, उसको कोसने लगी। लकड़हारे ने जड़ी बूटियाँ एक तरफ रखी और अपनी बान की बनी हुई चारपाई पर एक लम्हे के लिए बैठ गया। बीवी कोसते हुए पूछने लगी, ये कैसी जड़ी बूटियाँ उठाकर ले आए हो और इनका क्या करोगे? लकड़हारा बीवी की अनसुनी करते हुए जड़ी बूटियों को घोल में डालकर कूटना शुरू किया। जब कूटा और कूटने के बाद में उनको सुखाने के लिए रख दिया। दूसरी सुबह सवेरे वो दवाइयाँ लेकर बाजार की तरफ चला गया और आवाज़ें लगाने लगा कि हर किस्म के मर्ज़ की दवा मौजूद है। उस मुजस्समे ने बताया था कि इसके अंदर हर किस्म की दवा मौजूद है, हर बीमारी की शिफा इसके अंदर मौजूद है। वो लकड़हारा चिल्लाने लगा, आवाज़ लगाने लगा कि मेरे पास में जो दवाई है, इस दवाई में हर किस्म की बीमारी की शिफा है, मेरे पास में आओ और आकर के मुझसे दवाई ले जाओ। लकड़हारे की आवाज़ सुनने के बाद बाज़ार में लोग जमा हुए, लेकिन उसके ऊपर हंस करके चले जाते। लकड़हारा परेशान नहीं होता है, लेकिन बराबर लकड़हारा आवाज़ लगाता रहा कि हर किस्म की दवा मौजूद है, हर नए पुराने मर्ज़ का शर्त के तौर के ऊपर इलाज है, अपना मर्ज़ बताइए, मुझसे दवा ले और शिफा याब हो जाएं। लोग उस आवाज़ को सुनकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। ये देखो, ऐलान कर रहा है कि हर मर्ज़ की दवा इसके पास में है, और जबकि ये छोटी सी जो गोलियां लेकर के आया है, छोटी छोटी, और उसमें एक ही तरीके की सब हैं, तो इसमें हर मर्ज़ की शिफा कैसे हो सकती है? या तो ये मजनू हो गया है, या तो ये घर से निकाल दिया गया है, बाउला हो गया है। तरह तरह की बातें लोग करते और उसका मजाक उड़ाते। लेकिन लकड़हारा हार नहीं मानता है, बदस्तूर अपनी आवाज़ निकालता रहा, जिसे सुनकर एक औरत रोती हुई अपनी बेटी समेत उसके पास आई और कहने लगी कि इसकी बेटी पेट के दर्द की वजह से मरी जा रही है और उसका दर्द किसी दवा से ठीक नहीं हुआ है, अभी तक करके किसी भी दवा से उसका दर्द ठीक नहीं हुआ है। लकड़हारे ने उस बूढ़ी खातून से कहा कि मेरी दवा अपनी बेटी को खिला दो, सेहतयाब हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा, इसका इलाज तो बड़े बड़े हुक्मा भी कर चुके हैं, वो करके परेशान हो चुके हैं और इसके पेट की दर्द ख़त्म नहीं हुई है। तुम्हारी दवा क्या खाक काम करेगी? तुम्हारी दवा कैसे काम कर सकती है? लेकिन लकड़हारे ने बड़े पुरएतमाद तरीके से उस बच्ची को पानी के साथ दवा खिला दी। लकड़हारे ने खुद अपने हाथों से उस बच्ची को दवा खिला दी और देखते ही देखते बच्ची का दर्द गायब हो गया। ये देखकर वो बुढ़िया बहुत खुश हुई और बहुत हैरान भी। ये सारा माजरा देखने कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे।
जिसे सब हैरान हुए, सब लोगों ने देखा, सब हैरान हुए कि अभी दवा खिलाया था और अभी इसको शिफा मिल गई। बुढ़िया ने लकड़हारे से दवा की कीमत पूछी तो लकड़हारे ने कहा सिर्फ 3 रुपये। वो बड़े बड़े हुक्मा के पास, हकीमों के पास में अपनी बच्ची को लेकर के गई और बहुत सारे पैसे लुटाए, बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन उसके पेट का दर्द ख़त्म नहीं हुआ। लकड़हारे ने अपने हाथ से दवा खिलाई और दर्द भी ख़त्म हो गया। जब पैसे पूछे 3 रुपये बताए तो और उसको अफसोस हुआ। जब बुढ़िया को और बाकी तमाम लोगों को उस दवा की इतनी कम कीमत सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ और बुढ़िया ने शुक्रिया के साथ 3 रुपये अदा कर दिए। लोगों में इसका चर्चा आम हो गया। जोग दर जोग मरीज़ आते और सस्ता इलाज करवाते और बाकी लोगों में चर्चा आम होता चला गया। जो लकड़ियाँ की दवा मशहूर होती गई, उस लकड़हारे की लोग ज़्यादा आने लगे। लकड़हारा रोज़ाना वक्त निकाल कर जंगल जाता और हस्बे ज़रूरत उसी दरख्त के पत्ते और दीगर जड़ी बूटियाँ लाता और घर में पीस कर दवा तैयार करके फिर मरीज़ों का इलाज करता। देखते ही देखते लकड़हारा अमीर होने लगा और अब तो गरीब लोगों को माली इमदाद भी करने लगा। पैसा आ गया, माल आ गया तो उनकी इमदाद भी करने लगा। एक रोज़ एक खूबरू जवान लकड़हारे के पास दवा लेने आया। लकड़हारे ने हस्बे मामूल बहुत कम कीमत पर उसे दवा दे दी तो वो आदमी बहुत खुश हुआ और पूछने लगा क्या तुमने मुझे पहचाना? लकड़हारा उसे तजस्सुस से देखने लगा लेकिन उसे पहचान नहीं आया, उसको पहचान नहीं पाता है और कहने लगा मैं नहीं जानता आप कौन हैं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें उस दरख्त से मुझे तारुफ करवाया था जिसकी तुम आज दवा बनाकर बेचते हो। और मज़ीद बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ईमानदारी से इस काम को शुरू किया है और लोगों से पैसे भी बहुत कम लेते हो। लकड़हारा हैरान था कि उसकी तो अजीब व गरीब, डरावनी और पुरअसरार शक्ल थी और आज आम इंसान जैसा खूबसूरत जवान है। लकड़हारे ने दरियाफ्त किया कि पहली मुलाकात में आपकी शक्ल डरावनी क्यों थी और वो आदमी हंसने लगा और बताने लगा वो दरअसल शहजादा मैं हूँ। और उसने आगे बताया कि वो उसका भाई गेंद खेल रहे थे, यानी मैं और मेरा भाई गेंद खेल रहे थे कि उनकी गेंद झाड़ियों में गिर गई और जब वो उसे लेने गया तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे नज़र आए जो अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। दरअसल हमारी बाल गलती से उनको जा लगी थी जिससे उनकी इबादत में खलल आया था। मैं तो बच्चा था और बहुत शरारती भी था। गेंद लेने गया तो उन बुजुर्ग को नागवारी में मैंने देखा तो मैंने उनके साथ में बदतमीज़ी से पेश आया और साथ ही उन्हें ठोकर भी मारी जिसकी वजह से बुजुर्ग ने मुझे बद्दुआ दी और मेरी शक्ल बिगड़ गई। शक्ल बिगड़ने के बाद मैं इंतहाई परेशानी के आलम में उनसे माफ़ी तलब करने लगा, लेकिन बुजुर्ग इंसान ने एक शर्त रखी कि उसका हल तभी मुमकिन है तुम उस वक्त सही हो सकते हो, इंसानी शक्ल में आ सकते हो तुम जब अच्छाई बांटते रहो और मखलूक तुमसे खाइफ ना हो, यानी खफा ना हो, और कोई ऐसा अच्छा काम करो जिससे मखलूक फ़ायदा हासिल करे। मुझे उस दरख्त के बारे में अपने आबा वजदाद से मालूम पड़ा था, इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है। कोई इंसान मेरे करीब ही नहीं ठहरता था कि मैं उसे ये अच्छा काम करके बता दूं कि वो अच्छा काम करे और मैं भी अच्छा काम करके उसकी मदद कर सकूं। जो भी मुझे देखता डर के मारे भाग खड़ा होता था। मैंने इस सज़ा की कैद में बरसों गुजार दिए, तब जाकर तुमसे मेरी मुलाकात हुई और यूं तुम्हारी ईमानदारी की वजह से इस बद्दुआ का असर ख़त्म हुआ और दोबारा मेरा इंसानी जिस्म बन गया, मेरी इंसानी शक्ल हो गई। इसके साथ ही वो तसलसल में बोला कि अब मुझे इजाज़त दो। वो ये कहकर रुखसत हो गया। लकड़हारा अपनी ईमानदारी की वजह से अमीर तर होता गया और
بہت قلیل سے پیسوں میں علاج کرتا رہا اور عیش و عشرت اس کے پاؤں چومنے لگی۔ تب سے لکڑہارے کی بیوی بھی لکڑہارے کے ساتھ خوش رہنے لگی اور اس کو عزت سے پکارنے لگی۔ تو یہ تھی مختصر سی ایک کہانی جس کو آپ نے سنا ہے اور امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی، اور اس سے ایک فائدہ، ایک سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اچھا کرو گے اس کا پھل اچھا ملے گا۔